الف اللہ گائے رنگو رنگ بوٹا دے سارا بوٹا گو تاج سرکار بوٹو الف اللہ گائے رنگو رنگ بوٹا دے سارا بوٹا گو تاج سرکار بوٹو کلمہ طیب ماں صاف بیان دیکھو الف میم نہ کہ میرو یار بوٹو یہ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں جبرائیل نے دیکھیو نور پیارو قطبی تارا ماں مارے چمکار بوٹو اسے رخ ور پڑا درود سارا خاکی چھاں مٹھی لذت دار بوٹو الف ایک افسوس یر مان ڈاڈو آقا تارو بھی ہوں جے غلام ہو تو الف ایک افسوس یر مان ڈاڈو آقا تارو بھی ہوں جے غلام ہو تو مثل میری نہ کرتا تصدیق جے کر قلب میرا منور گوشان ہو تو یہ اشاروں ہیں یا تو رند محفل ہو اس میں پڑھے جائیں وہ خود ہو جائیں گے آپ سب باتیں کریں مسجد کا احترام سب خود بیٹھیں گے یا تو محفل اشاق کی ہو یا پھر سری مستان کا ڈرنا ہو تنہائی اور تنہائی میں قدرت کے وہ جلوے دیکھنے کے بعد انسان ذکر کرے اس طرح کی زبان میں تو شاید پھر کچھ اور مل جائے ٹھیک ہے ہم اور آپ حاجی صاحب کے 10ویں کی محفل میں ہیں یہ 10واں 40واں یہ تیجا چوتھا وغیرہ یہ جتنے بھی ہیں عمل مباح ہیں سب مل کر قرآن پڑھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اپنے بھی گناہ بخشواتے ہیں اور دوسرے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر کوئی ڈھول ڈمکا اس میں ہوتا ہے جو لوگ اس کو ناجائز کہتے ہیں وہ خود ناجائز ہو سکتے ہیں لیکن یہ عمل ناجائز نہیں ہے حاجی صاحب میں نے اس دن بھی سرئی میں جنازے میں گفتگو میں کہا تھا بڑے خندہ پیشانی شخص کھلے مزاج محفل میں کھل کے بولنا کھلا رہنا کھلی بات کرنا ایسا آدمی جو ہوتا ہے وہ اس کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے اور جس شخص کا ظاہر باطن ایک ہو اس پر کرم ہو جاتا ہے خدا کا اور جس کا ظاہر کچھ ہو اور اندر میں گٹ گٹ ہو تو اس کے لیے پھر کو اندھیری کوٹھڑی بھی گٹ گٹی کرتی ہے نہیں سمجھ لیں ہمیں آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اور آپ ظاہر باطن سے ایک ہوں جیسے ہم اگر ظاہر باطن سے ایک ہوں گے تو اللہ کے حبیب کا میں فرمان آپ کو بتا دیتا ہوں میری آپ سے ملاقات ہو آپ کی مجھ سے ملاقات ہو یا آپ کی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو اور ملاقات ہوئی ہم نے سلام کیا اور یہ سلام میرا اور آپ کا اندر سے تھا کیونکہ ظاہر تو کر دیا نا السلام علیکم نا جناب بہت اچھے ایسے ہیں ویسے ہیں آپ وغیرہ وغیرہ جتنا بھی مکھن لگانا ہو وہ لگا لیا لیکن اندر سے مکھن نہیں اندر سے گٹن گٹن تو اس کا کوئی فائدہ نہیں لیکن اگر اندر سے گٹن صاف ہے اور اندر دل سے سلام آیا اور دل سے اس کی آپ نے جو ہے تعریف بھی کی اور دل سے اس کو مانا تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں مومن مومن سے ملتا ہے ہاتھ ملاتا ہے جدا ہوتے دونوں کے گناہوں کو خدا معاف فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حاجی صاحب کو کرور در کرور جنت عطا فرمائے کثیر تعداد میں لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی ہے ان کی اور 40 آدمی یا ایک جماعت مومنوں کی مل کر اب ایک بندے کے لیے دعائیں مغفرت کر دے حضور فرماتے ہیں امید رکھو اللہ کی بارگاہ سے کہ خدا اس کی بخشش فرمائے پھر علماء تھے کثرت سے بزرگ لوگ تھے
की जिस आयत करीमा को मैंने पढ़ा, ये इसीलिए वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। मैंने उस जनाजे में भी बात आयत यही ली थी, लेकिन क्योंकि अकीदा बेसिक चीज है, जैसे ये मस्जिद शरीफ है, इसके अगर पिलर मजबूत ना हो तो ये छत टिक नहीं सकता है। छत पे आप टाटा शक्ति से और कोई सी भी शक्ति लाकर रख लो, जब तक पिलरों में नींव में शक्ति नहीं होगी, पावर नहीं होगा, तब तक ये शक्तियां सब बेकार हैं। इसी तरीके से जब तक इंसान का अकीदा सही नहीं होगा, तब तक अमाल सब बेकार हैं। अमाल काम जो है वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं हो सकते। तो अकीदा बेसिक रखने के बाद अल्लाह की इबादत करिए आप, इसमें कोई दो राय नहीं, वो फर्ज है इबादत करना। लेकिन मां बाप के साथ हुस्न सुलूक, जिंदे हैं तब भी हुस्न सुलूक, रुखसत हो जाए तब भी हुस्न सुलूक। जिंदे हूं तो क्या हुस्न सुलूक? कुरान फरमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, उनमें से दोनों या एक कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, उफ्फिन वला तनहरहुमा, उन्हें उफ भी नहीं कहना, उन्हें झिड़की भी नहीं देना। झिड़कना जानते हैं ना, खोरियां बोल गए उफ यूं उफ, यो बड़ो सोनी देतो उफ यूं वला तनहरहुमा। कुरान फरमाता है उफ भी नहीं कहना, झिड़कना भी नहीं। या अल्लाह कैसे कराम करें? फरमाया वकुल्लहुमा कौलन करीमा, दोनों के साथ नरमी वाली, मेहरबानी वाली, अदब वाली, प्यार वाली बात करो। या अल्लाह यहां तक बता दिया तूने दस्तूर, आगे चलें क्या है? फरमाया जब और बूढ़े हो जाए ना, बीमारी की हालत में आ जाए, जब तू बच्चा था तो तुझे उनकी जरूरत थी, उन्होंने तुझे सीने से लगाया, लोरियां दी, तुझे रात पूरी सीने से लगाकर मां ने रखा, रोता रहा, तुझे दूध पिलाया, बाप तुझे जो है तेरी दवाई का हर इंतजाम तेरा किया बाप ने, और खुद नहीं सोया लेकिन तेरे सोने का इंतजाम किया। आज ये बुजुर्ग है, तू ताकत में है, इसको तेरी जरूरत है जिस तरह तुझे इसकी बचपने में जरूरत थी। अल्लाह ने फरमाया अब ये बुजुर्ग हो गए ना, तो अब बुजुर्ग हो गए तो खिदमत करना ही करना है, उफ भी नहीं कहना, अच्छी बात करना है। और फिर फरमा दिया वहफिज लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जनाह पर को बोला जाता है, वहफिज लहुमा जनाह ज़ुल्लि। अब आपके पास पर नहीं, यहां पर से मुराद बाजू है। हाथ फैलाओ, कुरान कहता हाथ फैलाकर दुआ करो। कब्र पर करो कि जनाजे के बाद करो, कि ये खट पे बीमार हैं तो मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ करके करो, लेकिन हाथ फैलाओ और उठाओ। वहफिज लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हाथ फैला दो, अर्ज करो बारे इला इन दोनों पर रहम फरमा, जिस तरह इन्होंने बचपने में मेरे साथ कफालत की है, मुझ पर ये मेहरबान रहे, मेरी परवरिश की है, या अल्लाह तू इन पर करम फरमा। है कोई बताइए ना, कुरान की आयत पढ़ी है मैंने, इस आयत की कैटेगरी में हम और आप सब अपने अपने गिरेबान में जाके कि हम कितना अमल कर रहे हैं अपने वालिदैन के साथ, हुस्न सुलूक कितना कर रहे हैं, बताइए। आजिज आ गया हूं मैं, थक गया हूं, दवाई तुझे खिला खिला कर खांसी खत्म नहीं होती, परहेज नहीं करता बुढ़ा है, पता नहीं कब मरेगा, ये जान छूटेगी। हाय हाय, तुझे क्या पता कि ये वो है कि जिसकी वजह से तेरी कब्र जन्नत की कैरी भी है और जहन्नम का गड़ा भी है।
मेरे दोस्तों, सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तो कुरान ने बताया ना, ये मैं अभी हयात की बात की है, ममात की भी बात करूं मैं मुख्तसर वक्त में। सरकार इरशाद फरमाते हैं, सुबह सुबह उठ करके जो औलाद अपने माँ बाप का, दोनों का या किसी एक के चेहरे का एक मर्तबा दीदार करे, मोहब्बत से, ये नहीं कि चढ़ाया हुआ हो, पीछे पेशानी से भी पीछे गया हुआ है। बाप ने कहा बेटा उठ नमाज पढ़, चलो नमाज तो इल्ला माशाअल्लाह, उसके लिए कोई उठे, या कहीं काम के लिए भेजा, जा बकरियों के साथ जा, भेड़ों के साथ जा, अथवाई लानी है, उठाया और जोर से लोईटी उठाई और मुंडे पे डाली और कूदता चला गया, ये सोने भी नहीं देता है बुढ़ा। मैं लोकल आदमी हूं, मैं बाहर का नहीं, आई समझ नहीं, कूद के गया, गुस्से से गया। ये पता नहीं तुझे कि तू बाप पर गुस्सा हो रहा, बाप नाराज हो रहा और रब तुझ पर गुस्सा हो रहा। सरकार शाह फरमाते, पहली नजर मोहब्बत से डाली सुबह सुबह, वालिदैन के चेहरे की, एक की या दोनों की, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक हज अकबरी और 2 उम्रे का सवाब इनायत फरमाता। मौलाना बशीर साहब मौजूद हैं, मौलाना मकसूद साहब, कारी सईद साहब, ये कई सनद याफ्ता उलमा इकराम है यहाँ तमामी, अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया क्या, एक नजर डालो, आज अभी लग रहे हैं ना टिकटें 2,30,000, पैसा हो गया खुला, एंजॉय। हज की नीयत कम है, एंजॉय की ज्यादा है, आई समझ। 100 में से इल्ला माशाल्लाह। वो कंकरियां वहां क्यों रहती हैं? वो मकसूद साहब आला हजरत की मैंने उसमें पढ़ा, तो उसके अंदर कारी सईद साहब आज से किसी ने सवाल किया कि हज के मकबूल होने की अलामत क्या है? हज ने 2 अलामतें बताई। तो मैं पहली अलामत तो यह है कि अगर जाएगा तो बद इखलाक होगा, बा इखलाक बन करके आएगा, बद अमल होगा तो बाअमल हो जाएगा वापस आकर। और दूसरी अलामत यह होती है गाजी की कि जिसकी कंकरियां वहां से उठा ली जाती हैं उसी का हज कबूल है, जिसकी वहीं रहती है उसका हज कबूल नहीं। अब नतीजा निकालो कितने टर्न उठा करके वहां से फेंकी जाती हैं, तो सबका होता है क्या? फिर जो मां बाप को नाराज करके जाए कतई तौर पर उसका हज कबूल नहीं हो सकता। उसकी जनाब वाला ख्वाजा अजमेरी के दरबार की, बगदाद की, गौतरिया सरकार की, लार शरीफ की, कहीं की हाजिरी कबूल नहीं होती है। उस सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो सुभान अल्लाह। सहाबा छोड़ देते बात को वहीं, जब एक नजर देख लेंगे तो हज अकबरी और उमरा मिल गया। साहब ने कहा, या रसूलुल्लाह जितनी नजर उनके दिल में तड़प थी ना, हम डालें। आपके दिल में अभी तक तड़प है जब तक मौलवी मजीद बोल रहा है। जो मौलवी मजीद क्या तड़प भी गई और आप घर पहुंचे तो वही बात पहले वाली। साहबा के दिल में तड़प थी, उन्होंने आज क्या, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी नजर डालें उतनी बार हज अकबरी और उमरा। मेरे नबी के अल्फाज सुनिए, बुखारी मुस्लिम की हदीस पाक है, ये मिशकात शरीफ से मैं बयान कर रहा हूँ। सरकार ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर व अतयब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है, बेनियाज है, वो मुख्तार कुल है। तुम जितनी डालते जाओगे तुम्हारा इरादा जैसी नीयत रब के साथ होगी वैसा तुम्हें अजर मिलेगा। तुम क्या काबाई में तलाश कर रहे हो, वो तो जिस पर जिसकी इस्तिताअत तो उसको मिलेगा। मेरी तेरे लिए तो यह है हज कि ये माँ बाप का उनकी खिदमत क्या है। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके मां नाराज हूं अल्लाह उसके रसूल और उसकी तमामी मखलूकात की उसकी होती है। दर्स हदीस में दे रहा था ज़ोहर के बाद, मैं वो नमाज ज़ोहर के बाद मेरा चैप्टर आ गया उसमें, और उसमें मैंने ये हदीस पाक पढ़ी, ये भी मुत्तफक अलैह हदीस है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि लानत है, उसके बाद मां जिससे नाराज हो जाए उसी का अगला जुज है। अल्लाह रब उसकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाता, और पर जन्नत हो जाती है जब तक के मां राजी ना हो।
सरकार ने इरशाद फरमाया वालिदैन को राजी करो, जिस तरह भी हो सके अगर कोताही हो गई तो माफी मांग लो, जब वालिदैन माफ करेंगे तो रब माफ फरमाए। इसलिए जिनके ये बुजुर्ग हैं ना, मौका है मरे, असली आपकी गलती नेमतें कदर ही नहीं, सुभान अल्लाह के जब नेमत ज्यादा हो तो कदर कोई नहीं रहती। यूपी में चल रहा है ना सिलसिला, उसी तरह के लोग अगर यहाँ मुसल्लत होते ना तो आप जनाब वाला फिर एक पेड़ के ऊपर बैठ करके भी रात पूरी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो पिछला दौर था ना, तो उस वक्त जनाब वाला कठारों में भी घुस करके दरूद पाक और आयतुल कुर्सी आदि पढ़ते थे, बच जाएंगे। बाप मरे सिर नंगा होंदा ते वीर मरन कंड खाली, ते मावा बाज मुहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली, ते भाई पाइयां दे दर्द विंडोंदे, भाई पाइयां दे दर्द विंडोंदे, ते भाई पाइयां दियां बावा, ते बाप सिरां दे ताज मुहम्मद, ते मावा ठंडियां छावां। मैंने इस मौजू को क्यों लिया? अकीदे का मैंने मसला पहले आपको बता दिया, अकीदा सही अहले सुन्नत का रखो और साथ में मसलों की आला हजरत जरूर लगाओ, क्योंकि आला हजरत का नाम जहां लग गया शैतान नहीं आ पाएगा वहां, और खासकर DW आई समझ नहीं, वो नहीं आ सकता। आला हजरत का नाम जहां हुआ तो जिस हजरत उमर के नाम से शैतान भागता था, 40 मील दूर आला हजरत के नाम से वहां भी दूर भाग जाता है। आई समझ? मैं आपको बताऊं, देखिए कोई अब आपको आला हजरत की बात की तो यहाँ डोबा में आपको नहीं लग रही होगी, आपको मैं यहाँ बात करूं जिसकी आप ज्यादा शदाई जी साहब के कह दो सुभान अल्लाह। आला हजरत का कोई और रास्ता नहीं, आला हजरत का रास्ता वो है जो जी साहब का है, मियां निजामुद्दीन साहब का है, मियां बशीर साहब का है, और रास्ता नहीं आला हजरत का, बल्कि आला हजरत ने इनकी चौखटों की हिफाजत फरमाई है। इस पर रहते हुए 5 वक्ता नमाज की पाबंदी कीजिए, वालिदैन की खिदमत कीजिए, जितना मौका मिले। जब ये साया उठ जाता है तब पता चलता है कि क्या है साया वालिदैन का। मर्द जब चला जाता है ना तब पता लगता है कि मर्द क्या है, बिरादरी में मर्द क्या है, घर में मर्द क्या है। ये होगी बात मेरी हयात में। अब ये कि मरने के बाद, तो मरने के बाद एक हदीस में आपके गोश गुजार कर देता हूं जो इसाले सवाब के ताल्लुक से जो हम ये कर रहे हैं, ये फल फ्रूट रखा हुआ है वगैरह जालिक, सबूत है इसका। सरकार ने खजूरों पर दुआ फरमाई है, रोटी पर दुआ फरमाई है, लेकिन मैं हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला सहाबी रसूल हैं, वो हाजिर हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, अगर वो हयात होती तो जरूर कुछ सदका करती। क्या तो सुभान अल्लाह। अगर वो हयात होती तो जरूर कुछ सदका करती। या रसूलल्लाह मैं क्या उनकी तरफ से सदका करूं? पता चला कि जब कोई रुखसत हो जाए तो जिंदा उसकी तरफ से सदका माली भी कर सकता है और दुआ भी कर सकता है। तो देखिए आप, हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबी जाओ जा करके एक कुआं खुदवाओ। कह दो सुभान अल्लाह। जहां जिस चीज की जरूरत होती है वही सदका सबसे बेहतर होता है। वहां पानी की जरूरत सबसे ज्यादा थी, सरकार ने हुक्म दिया कि पानी का कुआं खुदवाया, कुएं में पानी आ गया। भाभी होता कहता आगे बात छोड़ो, क्या अब क्या करना है, पानी आ गया, लोग पीते रहेंगे, सवाब मिल जाएगा डायरेक्ट। लेकिन वो वहाबी नहीं थे, माज़अल्लाह सहाबी रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई समझ? हाजिर हो गए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। या रसूलल्लाह हुक्म दिया था कुएं खुदवाने का, खुदवा चुका हूँ, पानी आ चुका है। या रसूलल्लाह चलिए दुआ फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सरकार ने ये नहीं फरमाया कि मेरे साहबी जब तूने अमल कर ही लिया, जिस तरह नहीं ये लोग कहते जब जनाजा पढ़ लिया बाद में दुआ की क्या जरूरत, बोलते नहीं जनाजा पढ़ लिया बाद में दुआ की क्या जरूरत। तो हुजूर भी वहां फरमा देते मेरे साहबी कुआं खुदवा दिया तूने, पानी आ गया, लोग पिएंगे, बताइए कोई भी पानी उससे पिएगा सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इन्नमल अमालु बिन्नियात के तहत सवाब मिलना है। तो सरकार ने फरमाया था मेरे साहबी जाओ, हो गई बात, तेरी माँ के नाम से कुआं खुद गया, कयामत तक लोग पानी पिएंगे, सवाब होता रहेगा। लेकिन सरकार ने दुआ सिखाई, क्योंकि अब दुआ मुख्फुल इबादा, दुआ इबादतों का मक्स हुआ करती है, दुआ इबादतों को मकबूल करवाती है। नमाज में भी दुआ है, सूरा फातिहा खुद दुआ है, आगे तैयात के बाद फिर दुआ वो सुना के बाद खत्म करता हूं मैं। सरकार तशरीफ लाए कुएं पर, कुएं का नाम रखा बीर उम्मे साद। बीर अरबी में कुएं को कहा जाता है, तो बीर उम्मे साद, साद की मां का कुआं। आज भी वो कुआं मौजूद है और इंशाअल्लाह मेरा ईमान कहता है कयामत तक मौजूद रहेगा और लोग सैराब होते रहेंगे। इसलिए सवाब हज़रत साद की मां को जो है वो पहुंचता रहेगा, सवाब जरूर मिलेगा। तो वहीं से साबित हुआ कि जिंदा अगर मुर्दे के लिए कोई अमल करे, कारे खैर करे, कोई सदका करे तो अल्लाह उसको जरूर सवाब देता है। ये नबी से साबित है। सुभान अल्लाह। इसी वजह से हम ये करते हैं सब, और खुद हम नमाज पढ़ते हैं। आखिरी बात करके मैं इजाजत चाहूंगा क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है। नमाज पढ़ी हमने, दुरूद पाक पढ़ते हैं। पहले हमने सना पढ़ी, अलहम्द पढ़ा, उसके बाद फिर सना हमने की उसकी सजदे में सर रखकर, फिर अत्तहियात पढ़ी, अत्तहियात के बाद दुरूद पाक पढ़ा। कह दो सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बाद हमने कहा रब्बि जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती, यहां तक भी हुआ। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ हमारे रब हमारी दुआ कबूल फरमा। पीछे जो कुछ भी पढ़ा सब कबूल फरमा। रब्बना ग़फ़िरली, ऐ मेरे रब मेरी बख्शिश फरमा। नमाज में दुआ कर रहे हो आप, नमाज इबादत है ना। नमाज तो फर्ज ऐन है और जनाजा फर्ज किफाया है। फर्ज ऐन ज्यादा अहम है, अगर उसके बाद भी दुआ है तो किफाया के बाद दुआ क्यों नहीं होगी? जिसको जरूरत नहीं उसको जरूरत ही नहीं, जिसको जरूरत है, क्योंकि दुआ मोमिन करता है। रब्बना ग़फ़िरली, मेरे रब मेरी बख्शिश फरमा। वाली वालिदैया, और मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा। वाली मन तवालद, और जिन जिन के भी वालिदैन हैं उनकी भी बख्शिश फरमा। रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वली मन तवालद वली जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात। अपनों की भी कैद खत्म हो गई, अपनों की भी कैद यहाँ वालिदैन तक था ना, आगे अपना फिर वालिदैन का। फरमाया जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, तमाम मोमिन मर्द, तमाम मोमिन औरत, तमाम मुसलमान मर्द, तमाम मुसलमान औरतों की मौला बख्शिश फरमा। अल-अहयाउम वल अमवात, या अल्लाह जो जिंदे हैं उनकी भी बख्शिश कर दे, जो मर चुके हैं उनको भी बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या नतीजा निकला कि नमाज 5 वक्त हम पढ़ते हैं, अत्तहियात उसमें पढ़ते हैं। अल्लाह ने दुआए मगफिरत अत्तहियात के अंदर भी रख दिया। कह दो सुभान अल्लाह। अल-अहया, जिंदों के लिए भी बख्शिश की दुआ मांगो, वल अमवात, मुर्दों के लिए भी बख्शिश की दुआ मांगो। ये 10वां, ये 40वां, ये तीजा, ये सब जो है ये सब का सब दुआ का एक मजलिस है। मिलकर के लोग दुआ करते हैं, और 40 आदमी अगर मिलकर दुआ कर दें उसमें जरूर अल्लाह का एक मकबूल बंदा होता है, उसकी वजह से खुदा दुआ कबूल करके मगफिरत फरमाता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमेशा वालिदैन का एहतराम कीजिए, बड़ों का एहतराम कीजिए, और 5 वक्त नमाज पढ़िए, और अकीदा अहले सुन्नत व जमात पे कायम रहिए। ये लोग यहाँ से